So today's topic is probation of offenders. ठीक है. Probation is a method. Probation is a method of dealing with offenders. Of dealing with offenders by releasing them under supervision. Releasing them under supervision instead of sending them to jail. Instead of sending them to jail. To encourage their reformation and rehabilitation. First, क्या बोले? To encourage their reformation and rehabilitation. क्या माँ? Jail. To encourage their reformation. To encourage their reformation and rehabilitation. कई क्यों लड़ ले रहे दोनों? अब नहीं मिलते खाने पीने की चीज़ें आफ्टर क्लास. हाँ, drunkers नहीं, people who create nuisance. Generally, if you see in so many police station and even the Commissioner of Police Hyderabad, he is also conducting because he is an executive magistrate. कोई सुनने क्यों नहीं, वहाँ बात कर ले रहे, यहाँ बात कर ले रहे. Commissioner of Police Hyderabad is an executive magistrate. He also holds the position of a judge. Commissioner of Police Hyderabad. Even at the time of C.V. Anand sir IPS, he used to conduct these meetings. Even the present Commissioner of Hyderabad, Sajjanar IPS, he is also conducting these meetings. People who are habitual offenders, people who are fighting rivalry groups, गुंडाज ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ऐसे लोगों को बुला के प्रोबेशन करते, समझाते, देखो बेटा अच्छे रहो, नहीं बोले तो फिर लंबा अंदर जाते, तो रिफॉर्मेशन करते. थोड़े लोग शरारती रहते तो उनको क्या करना मालूम, पकड़ के जेल में डाल देना नहीं है, समझाना रहता पहले. ठीक है, अपने घर में बच्चे भी रहते तो कुछ शरारत के तो पकड़ के फांसी नहीं देते अपन, समझाते हैं लोग. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्रिएटिंग न्यूसेंस ऑफ द सोसाइटी के जो लोग रहते उनको समझाते, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेशन. ठीक है, चलिए. It replaces punishment with guidance. It replaces punishment with guidance. वाला खाना खा लिए, आप भी नहीं खाते क्या? It replaces punishment with guidance, counseling and social reintegration. Guidance, counseling, and social reintegration. हाँ, लिखो बाबा. काउंसलिंग एंड सोशल रीइंटीग्रेशन. थोड़ी जगह छोड़ के जहां से सुने आ रहा वहां से लिखना शुरू कर दो. ठीक है, तो बाकी का पहले बाद में लिख सकते. चलिए, लीगल बेसिस. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट. प्रोबेशन नंबर 1 3 है. ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. ऑफेंडर्स एक्ट 1958. सेकेंड, सेक्शंस 360 and 361 of CRPC. 360 and 361 of CRPC. कौन कौन जो है पिछले क्लासेस के BNSS लिखे? मेरे को एक दो जनों से उम्मीद है, आप शायद उन्होंने, और कोई CRPC नहीं लिखे तो BNS कहाँ से लिखते? हाँ, वही बोल रहा हूँ. आप तो लिख रहे हैं ना नोट्स डेली, BNSS लिखे, थोड़ा टाइम निकालना ना साहब, तो निकाल के सर्च करके लिखना. लिखे तो ये देखो, ऐसा गवर्नमेंट की चीज को आप अननेसेसरी नहीं बोल सकते. नहीं भाई, देखो ऐसा नहीं रहता. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. जो 2023 में
it has come into act. It has taken a long time, 5-6 years से उसके ऊपर काम करते 23 में it has come into act. So it's not a joke or it's not a easy task to बार बार change करना. So the reason being, वही बोल रहा था, the reason being is that these IPCs and CRPCs that were enacted during colonial era, ठीक है, during the era of the Britishers. So that is the reason the government has changed it into the Indian names also. अब आप BNS देखेंगे, क्या है, भारतीय न्याय. So giving the Indian names with the Indian roots, this is the reason. There are so many things that government is changing because that was enacted during previous governments or previous colonial era, Britisher era, colonial era के जो rulers थे वो time के लोग जो enact करे थे. The thing is good, but when you see the content of the IPC and BNS, the content is similar, the name is changed and the reference number is changed, and some sections have been added, some in the sections some improvements are there because of the present time, because at the time of Britishers there was no problem of cyber scam जब नहीं था, मगर अब है तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना, because of that reason. Yes. Britishers, they had different codes. For Indian there were different codes, and for the other Britishers, so those who commit crimes, there were different codes, and they used to treat unfairly also. देखो क्या है, हाँ सही बोले. चलो नंबर 3, आर्टिकल 21. नंबर 3 लीगल बेसिस में, नंबर 3 आर्टिकल 21. प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 बोला ना, प्रोहिबिशन ऑफ बोला एक्ट 1958, तो ये तो 1 है. सेकंड इज सेक्शन, थर्ड इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. आर्टिकल 21 इज नंबर 1, एंड लिबर्टी, ठीक है, एंड लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी. Right to life and personal liberty, fair treatment to offenders. Right to life and liberty, fair treatment to offenders. Fair treatment to offenders. Fair गोरा बोल, fair treatment to offenders. चलिए, who can get probation? Who can get probation? Probation किसको बोलेंगे? In simple words, training और counseling काइंड ऑफ थिंग. ट्रेनिंग हाई लेवल का होगा, पहले तो काउंसलिंग करना है. देखो बाबा ये गलतियां मत करो, आप ऐसा कर रहे हो, आपका नाम बहुत बार आ रहा, आपके खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आ रहे, आपका नाम बहुत FIRs में आ रहा, आपका नाम बहुत कंप्लेंट्स में आ रहा. सो आपके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है, डू नॉट गेट इंडल्ज इन ऑल दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज. सो दिस इज समथिंग काउंसलिंग. प्रोबेशन बोले तो वेरी गुड. Who can get probation? Number 1, 4 है इसके अंदर. नंबर 1, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, मतलब जो फर्स्ट टाइमर्स रहते, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, यंग पर्सन्स और दोज अंडर 21 years of age, और दोज अंडर 21 years of age. थर्ड, women offenders को नहीं है. डिस्क्रिमिनेशन क्या नहीं, इफ दे आर सीरियस देन पुलिस विल टेक एक्शन. विमेन ऑफेंडर्स, ठीक है. फोर्थ, माइनर ऑफेंसेस और वेयर रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल. माइनर ऑफेंसेस और वेयर रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल. Reformation, yes. Side heading. Types of probation possible. Types of probation under the Act 1958. Under the Act 1958.
Number 1, release after admonition. Release after admonition. Admonition, ADMONITION. Release after admonition, section number 3. Yes, yes. अरे नहीं, सीआरपीसी नहीं है ये, प्रोबेशन एक्ट 1958 है, एक्ट है, ठीक है। इसके अंदर 2 है, ए बी ऐसा लिखो। ऑफेंडर इज रिलीज्ड, यस, ऑफेंडर इज रिलीज्ड with a warning, offender is released with a warning after being found guilty. लिखिए, after being found guilty. B, used for petty offenses. Used for petty offenses. ठीक है। अब सेकंड वाला, टाइप्स में फर्स्ट वाला हो गया, ये टाइप्स में सेकंड वाला, रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अब इसमें ए और बी है। गुड कंडक्ट, सेक्शन 4, yes, no, A section 4 nahi, release on probation of good conduct, section 4. Then coming to A, offender is released under supervision. Offender is released under supervision of a probation officer. Under supervision of a probation officer for a specified period. Probation officer for a specified period, usually 1 to 3 years. B, must maintain good behavior and obey conditions. Must maintain good behavior and obey conditions. Must maintain good behavior and obey conditions. ठीक है। So the types of probation are 2, that is release after admonition का माना काउंसलिंग वाउंसलिंग देके छोड़ देते फॉर फर्स्ट टाइमर्स। बच्चे से हो गई भी गलती, चलो किसी से लड़ लिया, किसी से झगड़ लिया, ये वार्निंग देके छोड़ देते, ठीक है। सेकंड, रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, उसमें भी क्या रहता कि छोड़ते बट एक सुपरविजन ऑफिसर रख देते उसके ऊपर, पुलिस वाले कोई रहते, एसआई वगैरह, एएसआई रहते, असिस्टेंट सब डिवीजन, हफ्ते को आके मिलना बाबा, तुम हफ्ते को आके साइन करके जाना, तुम्हारे ऊपर नजर है हमारी, ना कुछ छोड़े नहीं हम, समझ रहे, बार बार नाम आ रहा तुम्हारा, बार बार लोग आके कंप्लेन करे, तुम सीसीटीवी में दिख रहे, रात में क्यों ठहरे अकेले, गाड़ियों के बंद जाके क्यों ठहरे, होटलों में क्यों बैठ रहे। वो कई बार वीडियोस देखे होंगे ना, पुलिस वाले मार मार के भगाते, क्यों है वो, यही है, वो प्रोबेशन ही है, ट्रेनिंग है। अब नहीं अभी तो उतनी टेक्नोलॉजी तो फिल वक्त नहीं है अपने पास। बहरहाल प्रोबेशन में जो है ना, पुलिस को ये राइट्स है कि काउंसलिंग करना है। अब कई बार वीडियोस देखे ना, चबूतरा में बैठे, चबूतरा मिशन में निकाले थे, क्या था वो, यही था, प्रोबेशन ही था, प्रोबेशन नहीं है, चबूतरा मिशन में बच्चों को मार मार के भगा देते, चलो घरों को जाओ, ऑटो में बैठ रहे हैं, कहाँ की बैठ रहे हैं, गलियों में बैठ रहे हैं, चबूतरों में बैठ रहे हैं, सब की जरूरत नहीं है, ट्रेन घरों को चले आना बोल के पुलिस वाले भगा देते। तो दैट इज प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट, फर्स्ट टाइम। फिर मिला तो केस बुक करते, ठीक है। तो उसमें गुड कंडक्ट भी रहना, फर्स्ट टाइमर रहा तो छोड़ देते, सेकंड टाइमर को बोलते फिर तो इससे पहले बोला था ना, अब तू आके डेली साइन करके जाना, तेरे ऊपर नजर है हमारी, ऐसे बात करके। मतलब पुलिस का ये रहता कि भाई गुड कंडक्ट रहो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, क्योंकि शुरू से एक मिसाल है कि भाई कोई बीमारी है, छोटी रही उसको वहीं इलाज कर दो, बड़ा करके इलाज करे तो नुकसान होता। तो एक बच्चा है, कोई नौजवान बच्चा बच्ची कोई भी है, अगर वो लोग बैड बिहेवियर में है तो उसको वहीं करेक्शन कर दो, नहीं तो उन्हें होते तो बड़ा गुंडा बनता, तो थ्रेट टू द सोसाइटी होता, उन्हें लोगों को जीना हराम करता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन प्रॉब्लम क्रिएशन करता, तो उसको वहीं पर ट्रेनिंग देके उसको वहीं खत्म करो वाली सी बात है, ठीक है। चलिए, रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर,
प्रोबेशन ऑफिसर, रोल साइड हेडिंग, रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। 3 है इसके अंदर। नंबर 1, supervises the conduct of the offender, supervises the conduct of the offender, submits, second one, submits progress reports to the court, submits progress reports to the court, ठीक है। थर्ड, helps with rehabilitation and counseling, helps with rehabilitation and counseling, ठीक है। The role of probation officer is कि he will supervise and conduct and counseling। प्रोबेशन ऑफिसर क्या करते? प्रोबेशन ऑफिसर क्या करते? जो भी ऑफेंडर है उसको काउंसलिंग भी करते, उसका कंडक्ट पे, बिहेवियर पे उसकी नजर रखते, ठीक है। सेकंड क्या है? सबमिट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द कोर्ट, अगर उसका कोई रिपोर्ट कोर्ट में है, एफआईआर चल रही, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करते, ठीक है। अब इनका ये है, बेल पे रिलीज है, बेल पे रिलीज होने के बाद क्राइम कर रहे, बेल के रिलीज लोगों को सता रहे, बेल पे रिलीज रातों में फिर रहे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करे, इनका कंडक्ट गुड है, अच्छे बन गए, रिफॉर्म हो गए, सुधर गए, बोलते ना अपने घरों में, वैसा सुधर गए भाई, तो सुधर गए बोल के कोर्ट को रिपोर्ट देते। तीसरा क्या है? हेल्प्स विद रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग, रिहैब सेंटर्स कई सारे ऐसे, रिहैब सेंटर का माना जो बिगड़े हुए लोग हैं जाके वहां सुधर के आते, जैसे स्मोकर्स है, ड्रगिस्ट है, तो उनको रिहैब में भेजते, रिहैब में भेज के क्या करते? ड्रग छुड़ाते, सिगरेट छुड़ाते। उसका प्रोबेशन ऑफिसर का क्या है? और जो ऑफेंस कर रहा है उसकी काउंसलिंग छुड़ाना प्रोबेशन ऑफिसर का काम है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो ये इस पे यूट्यूब पे मिल रही वो फायदेमंद है, समझ में आ रहा? क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहा। बेनिफिशियल है, चलिए वेरी गुड। बेनिफिशियल नहीं बोल तो रुका देता हूं मैं, क्योंकि मेरा भी काम बढ़ा, हमारे एडिटर का भी काम बढ़ा, इसमें तकरीबन 4 घंटे जा रहे, एडिटिंग करना, वो करना, एडिटिंग करके मेरे पास चेक कर, तो फिर पूरा मैं चेक करना, करेक्शंस कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको रिलीज करने का 4-5 घंटे उसमें जा रहे मेरे को। एनीवेज, कमिंग टू नेक्स्ट साइड हेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेशन। इसमें भी 4 है। नंबर 1, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स एंड हार्डेंड ऑफ क्रिमिनल्स। एक ही वर्ड सुने, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स with hardened criminals. Yes, hardened criminals, HARDENED, hardened criminals, मिक्स हो जाता, बिल्कुल सीनियर क्रिमिनल्स। क्योंकि एक जना सीखता तो एक्सपीरियंस लोग भी रहते, रहे आजा भाई इधर आजा, अपनी गैंग में जाओ ना जाओ बोलते, तो वो सब होना नहीं है, ठीक है। सेकंड, सेव्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सेव्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट का माना यह कि हर किसी को ले आके जेल में डाले तो उसका खर्चा अलग रहता, हाँ, तो खिलाते पिलाते नहीं, भूखा मारते क्या, जेल में खिलाना पिलाना, उसकी मेडिकल चेकअप करना सब रहता। थर्ड, इम्प्रिजनमेंट, तो इम्प्रिजनमेंट का जो पूरा प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है, वो पुलिस वाले लगे हुए हैं उसके ऊपर, कोर्ट ऑफिसर्स लगे हुए हैं, जेलर उसके पीछे लगे हुए, जेल के होम गार्ड्स लगे हुए हैं, समझे, अंदर पूरा उसका प्रोसेस है, तो उसके पीछे उतना एक्सपेंस कॉस्ट हो रहा, तो बचाने के वास्ते भी वन ऑफ द एडवांटेजेस। थर्ड, एनकरेजेस रिफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ रिवेंज, इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट लिखो, एनकरेजेस रिफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। इसमें रिवेंज यानी बदला हो जाएगा, पनिशमेंट लिखो, पनिशमेंट। Fourth, reduces overcrowding in prisons, reduces overcrowding in prisons, overcrowding in prisons, in prisons। encourage reformation instead of revenge का माना कि भाई कोई फर्स्ट टाइमर है तो उसको encourage कर दो ठीक ठाक होने के लिए, सुधर जाने के लिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। हर किसी को पनिशमेंट दे दो तो हर कोई सजा कर रहा, हर कोई गुनाह कर रहा, हर कोई जो है
कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी में लगाए तो लोगों को सुधरने का मौका दिया, और हर किसी को ले के जेलों में डाल दिया तो जेल में लोग ज्यादा हो जाते, बाहर कम हो जाते, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, तो हिसाब किताब से जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स है उनको तो जेल होना ही होना है, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो छोटा मोटा ऐसा कुछ करें तो उनको वार्निंग देना उनका काम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लॉ, साइड हेडिंग, हाँ जेल का करेंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉ, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965. The Supreme Court held that the act applies even the offenders. The Supreme Court held that the act applies even to offenses committed before its enactment. नहीं, two offenses हैं, TO2 offenses. Even TO2 offenses committed before its enactment. To promote reformation and rehabilitation. Before its enactment. To promote reformation and rehabilitation. ठीक है। So we end the topic of probation, ठीक है। The next topic is appeal. Yes, अफसोस के साथ स्टार्ट करो, APPEAL, अपील। यस समथिंग सेम, वही है, ट्रेनिंग का माना ही वो है ना। प्रोबेशन पीरियड क्या, जैसा कंपनीज में रहता, वही तो बोल रहा हूं मैं। यस प्रोबेशन भाई, कंपनी जो है तो प्रोबेशन पीरियड में, तो प्रोबेशन इज समथिंग ट्रेनिंग। मैं जब से क्या पूछ रहा हूं उनको, प्रोबेशन का माना क्या है, ट्रेनिंग। अपील, एन अपील इज ए लीगल राइट ऑफ ए पार्टी टू रिक्वेस्ट ए हायर कोर्ट टू रिव्यू, modify or reverse the decision of a lower court. Modify or reverse the decision of a lower court. It ensures that justice is not denied. Due to human error or misapplication of law. Not denied. Due to human error. Human error or misapplication of law. ठीक है। appeal is something, if there is a judgment from the lower court, you appeal to the higher court, challenging in a higher court, ठीक है। For the reason is to review, to modify or reverse the decision given by the lower court. अपील करो बोलते हैं, what is appeal? हाई कोर्ट को अपील करना अगेंस्ट लोअर कोर्ट, दैट उतना ही माना अपील का, ठीक है। लीगल बेसिस, दो साइड हेडिंग है, लिख लो। लीगल बेसिस, सेक्शंस 372 to 394 ऑफ CRPC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 136, 132, 134 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 136, 132, 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ सुप्रीम कोर्ट पावर्स, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, पावर्स, रिव्यू का सेक्शन कहां पर है बोलते, ये बताना आप। आर्टिकल नंबर 372 टू 394,
It gives details about the review, about the appeal in the higher court. अगर हाई कोर्ट कोई जजमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाना, अब सुप्रीम कोर्ट जो दिया कबूल कर ले, घर में बैठ जाना, ठीक है। चलिए, हु कैन फाइल एन अपील, नहीं लिखो, कल से नहीं आते हो, लिखो, हु कैन फाइल एन अपील। 4 है। फर्स्ट वन, अक्यूज्ड, किसी को कन्विक्शन हुआ तो उन्हें भी अपील कर सकता, साहब मेरे खिलाफ गलत हो गया, ये मैं क्राइम किया ही नहीं, ठीक है, इल्जाम लगा, तो हायर कोर्ट को जाते। अगर कोई कंप्लेनेंट है, जैसा पीपी है, पीपी है कंप्लेनेंट साइड, अगर वाकई कोई जो है क्राइम करके उन्हें एक्विटल हो गया तो इन्हों जाते हाई कोर्ट, साहब लोअर कोर्ट एक्विटल कर दिया, साहब जरा कन्विक्शन करो, ऐसा, ठीक है। यूजुअली नहीं करते, वाई बिकॉज उन्होंने बोलते हम कहीं को लेंगे काम, हमारा काम खूब है पहले, ऐसा करके नहीं लेते। मगर स्ट्रॉन्ग बेसिस रहा, इफ देखो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द अपील ऑफ द एडवोकेट, इसलिए एडवोकेट को क्यों इतना जो है इंपॉर्टेंस देते कि भाई जो एडवोकेट अपील करे वो चीज होती कोर्ट में, अगर एप्लीकेबल भी है हायर कोर्ट में, अब वकील साहब जो है उसको जस्टिफाई नहीं करे, क्या लॉर्डशिप ये अपील लेना है हमारी, और खाली पेपर डाल के ठहर के काइंडली लॉर्डशिप कंसिडर बोले तो अरे फेंक देता हूँ, उन्हें बोलता हमारे काम में ज्यादा है, लोअर कोर्ट के जजमेंट्स कहाँ रिव्यू कर लेते बैठेंगे, लोअर कोर्ट के जजमेंट्स कहाँ रिव्यू करके बैठेंगे, हमारे पास भी बहुत काम है यहाँ पर। तो वकील साहब जो है, एडवोकेट शुड अपील इन सच ए वे दैट द कोर्ट शुड एक्सेप्ट, उन्हें सीरियसनेस बताना, बोलना कि साहब पीपी सही काम नहीं करे, जो भी है लूपहोल्स इन द जजमेंट, इतना बड़ा पेपर बनाते, लूपहोल्स इन द जजमेंट, तो फिर हाई कोर्ट क्या करता, लोअर कोर्ट से पूरी फाइल मंगाते, पूरी रिपोर्ट मंगाते, हो सका तो जो है लोअर कोर्ट के जो जज ऑर्डर दिए ना उनका एक्सप्लेनेशन भी मंगाते, हालांकि एक्सप्लेनेशन रहता, एनी जजमेंट, ऑल द जजमेंट्स विल हैव द एक्सप्लेनेशन, जज क्यों दिए, मजिस्ट्रेट क्यों ऑर्डर दिए, उसका एक्सप्लेनेशन रहता पूरा, खाली मेरे दिल में आते दे दिया, ऐसा नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल प्रोसीजर ऑर्डर्स रहते हो, ठीक है। चलिए सेकंड, मैं कोई जजमेंट नहीं दिया अभी तक। सेकंड, प्रोसिक्यूशन, अक्यूज लिख दिए, अच्छा, अक्यूज में अगेंस्ट कन्विक्शन और सेंटेंस, हाँ, यस, अगेंस्ट कन्विक्शन और सेंटेंस। अक्यूज्ड क्या है, कन्विक्शन के लिए भी जा सकता और सेंटेंस के लिए, सेंटेंस क्या है, नहीं, पनिशमेंट, ठीक है। तो अपील कर सकता हाई कोर्ट में, साहब सेंटेंस मुझे बहुत ज्यादा देते रहे यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा पनिशमेंट दे रहे, पनिशमेंट कम कराओ अंदर, तो हाई कोर्ट से ऑर्डर आता, ठीक है। सेकंड, प्रोसिक्यूशन स्लैश स्टेट, अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन और स्टेट, अगेंस्ट एक्विटल और इनएडुकेट सेंटेंस, स्टेट against acquittal or sentence, inadequate sentence, against acquittal or inadequate sentence, मतलब सेंटेंस कम है भाई, इसको ज्यादा दिलाओ, इन्हें बहुत ज्यादा बदमाश है, सेंटेंस। थर्ड, कंप्लेनेंट और विक्टिम। फोर्थ, any aggrieved person, where law permits, law, कानून, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स रिगार्डिंग अपील्स, yes, rules regarding appeals. Number 1, no appeal in petty cases, fine less than 100 rupees। छोटे छोटे केस लेके हाईकोर्ट नहीं पहुंच जाना, 100 रुपए से कम है साहब, मेरे को 80 रुपए डाल दिए साहब, 50 रुपए कराओ बोल के हाईकोर्ट को नहीं पहुंच सकते, ठीक है। लेस देन 100 जाओ, निकलो बोलते हो, ठीक है। सेकंड, ऑटोमेटिक अपील इन डेथ सेंटेंस केसेस, 100 रुपीज। ऑटोमेटिक अपील
in death sentence cases to the High Court. Third, appeal must be filed within prescribed time. Appeal must be filed within prescribed time limits. Filed within prescribed time limits. Usually 30 to 60 days. Usually 30 to 60 days. Fourth, 30 to 50 case. 60 case, 60 days. How days? ठीक है. अच्छा, लोअर कोर्ट है. लोअर कोर्ट के लिए हायर कोर्ट का नाम क्या है? लीगल लैंग्वेज में बोला था मैं, भाई वेरी एपेक्स कोर्ट बोलते. ठीक है. लोअर कोर्ट के लिए हायर कोर्ट क्या है? एपेक्स कोर्ट. उसके लिए और हायर कोर्ट क्या है? एपेक्स कोर्ट. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट के लिए हाई कोर्ट क्या है? एपेक्स कोर्ट है. हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? एपेक्स कोर्ट है. उसके ऊपर जो भी है ना उसको एपेक्स बोलते हैं. एपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाला, उनसे ऊपर वाला. ठीक है. एपेलेट कोर्ट भी बोलते हैं उसको, एपेलेट कोर्ट. ठीक है, लिखिए. यस, द एपेलेट कोर्ट में कंफर्म. फोर्थ, द एपेलेट कोर्ट में कंफर्म, रिवर्स, मॉडिफाई और ऑर्डर रीट्रायल. द एपेक्स कोर्ट में कंफर्म, रिवर्स, मॉडिफाई और ऑर्डर रीट्रायल. रीट्रायल करो बोलते फिर से. जो लोअर कोर्ट में 10 साल चला, हमारे पास चला होगा. नेक्स्ट, हाँ फिर से शुरू होती, भोनी फिर से होती. नेक्स्ट, केस लॉ, साइड हेडिंग केस लॉ. के चिन्नास्वामी रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. चिन्नास्वामी रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1962. 1962. Appeal is a continuation of the trial, not a new proceeding. Appeal is a continuation of the trial, not a new proceeding. ठीक है. अपील जो हाई कोर्ट में कर रहे हैं, तो दिस केस लॉ डिफाइंस दैट इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रायल. वो न्यू प्रोसीडिंग नहीं है, कंटिन्यूएशन बोल रहे हैं. बट जनरल सेंस में देखा गया तो एक ऑर्डर आने के बाद कोई चीज फिर स्टार्ट किया तो रीस्टार्ट बोल सकते हैं आप, या रीओपन बोल सकते, रीट्रायल बोल सकते. बट देर इज ए साइटेशन इन जजमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 1962 दैट इट इज ए कंटिन्यूएशन. ठीक है, वो मालूम रहना. ठीक है. सो नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस. शराफत बच्चे लिखते खत्म करते क्योंकि इट विल टेक टाइम. फिर सेम रहता सस्पेंशन, लीगल बेसिस, हु कैन डू, ग्रांटेड. लंबा है कहानी इसलिए वो, क्योंकि हियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक. ठीक है. क्या क्या टॉपिक है? प्रोबेशन हुआ और अपील हुआ. प्रोबेशन का डिटेल हो गया एंड अपील का डिटेल हो गया. कल प्रोबेबली वी विल बी एंडिंग यूनिट 3. यूनिट 3 हम कंप्लीट कर देंगे. एंड अब देखेंगे कि बिफोर द internal how I can complete 4th and 5th unit, because the internal is of 3rd unit, 3rd, 4th and 5th. ठीक है, ऐसा. हाँ, 4th and 5th I already have sent you in the WhatsApp group. Go check and tell me. ठीक है. Thank you for the day.